Yes, ma'am, we are live. A very warm good afternoon to one and all. Myself, Dr. Manjula, Associate Professor from the Department of Kaya Chikitsa, Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Welcome you all for today's session on the 15th day of Navadasha Samvada. Today we will be having two sessions. First session is by Dr. Abhishek Acharya. Sir will be going to talk on importance of dosha, dusha, bala, kala, agni, prakriti, vaya, sattva, satya, desha, ahara, and stages of disease in treating them. Sir has already joined us. I heartily welcome you, sir. And now Thank I you. call up. And now I call upon Miss Sahana, final year BMS student, Ayurveda Mahavidyalaya Hubli, to introduce our today's guest speaker and also welcome Dr. Abhishek Acharya for today's session. Sahana. Good afternoon, everyone. I warmly welcome you all for today's session of Navadasha Samvada, national webinar organized by the Department of PG Studies in Kaya Chikitsa, Ayurveda Mahavidyalaya, Hubli. Now, I would like to introduce our today's guest speaker, Dr. Abhishek Acharya sir. Sir has completed his UG studies from BVVS Ayurveda Medical College, Bagalkot, and he has completed his PG studies at Parul University, Vadodara. Sir has passed PG, Diploma in Clinical and Applied Hypnosis, and also he has certified for Yoga Teachers Training course. Sir has published 4 international journal articles and has given 4 paper presentation. Sir is practicing Panchakarma since 10 years. Sir is also conducting regular lectures on various concepts of Ayurveda in YouTube channel. Sir is presently working as an assistant professor in the Department of Sharira Kriya at KJ Institute of Ayurveda and Research, Savli, Vadodara in Gujarat. I honored to welcome you, sir. Now the session is over to you. Thank you. Thank you. Thank you for the great explanation and introduction. Uh, shall we start, Manjula? Manjula ma'am? Yes, yes, Akshay. Let's Okay. Uh, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मोर ऑफ आई एम टॉकिंग इन द हिंदी, सो हिंदी एंड इंग्लिश. आज जो हमारा टॉपिक है उसका अगर इम्पोर्टेंस एक सेंटेंस में बताए, हाँ, तो 0 to 9 का इम्पोर्टेंस मैथ्स के अंदर क्या होगा? 0 to 9 अगर हमें बेसिक पता होगा, then we can solve any type of sum in maths. Okay, same, huh? Same in Ayurveda. If we know the basics, dosha balam kalam analam prakriti vayah सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथग्विदाः सूक्ष्म सूक्ष्माः समीक्ष्य एषां दोष औषध निरूपणेः यो वर्तते चिकित्सायां न स्खलति जात उचित. अष्टांग संग्रह हृदय स्थान 12/16 to 67-68. तो ये जो बेसिक आइडिया है, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कैसे इसका इम्पोर्टेंस नॉर्मल बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन हमें इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना है. ओके, इन जनरल क्या होता है पता है? द बेसिक आयुर्वेदा फिजिशियन 90% जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है दूसरे लोगों से, तो मोर ऑफ जितने भी फिजिशियंस होंगे, they are using modern terminology and treated with the Ayurvedic medicines. Okay, just like GP in Ayurveda, just like Sandhivata is equal to osteoarthritis, prescription is Mahayogaraj Google, complete. Okay, मगर आपको अगर अच्छा आयुर्वेदिक, जैसे कई सारे श्लोकास आपको मिल जाएंगे चरक सुश्रुत और भागवत के अंदर, जिसमें वैद्य का या विशेषज्ञ का कई सारे गुणों से उनको एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ये गुण होने चाहिए विशेषज्ञ के अंदर, देन ओनली ही कैन कॉल एज अ फिजिशियन और अ ग्रेट ट्रीटर. ओके, जो ट्रीटमेंट करने वाला है. तो ये समझना बहुत जरूरी है. हम शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंस से. ओके, बाकी तो दोष ये सारी चीजें आपको
बीइंग अ पीजी स्टूडेंट एंड यूजी स्टूडेंट्स काया चिकित्सा के अंदर आप हो, तो डेफिनेटली ये सारे वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड्स यू आर फेमिलियर विथ। ओके, तो यहाँ पे हमें समझना है द श्लोक का अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12/56 अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि तत असत ज्ञानम न शास्त्रादेव जायते। ओके, तो आपको एक्सपर्ट अगर बनना है कोई भी शास्त्र के अंदर, तो फर्स्ट थिंग क्या चाहिए आपको? यू हैव टू डू अभ्यास इन एनीथिंग। ओके, कर्म सिद्धि, यू हैव टू मेक योर सेल्फ, योर एक्शन इतनी अच्छी तरह से, इतनी पकड़ उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से दिया है, जस्ट लाइक रत्नादि सत असत ज्ञानम। ओके, यानी कि जो जौहरी होता है, गोल्ड में होता है, जो डिफाइन कर लेता है कि दिस इज द गुड डायमंड, दिस इज द प्योर डायमंड एंड दिस इज द फेक वन, वो कैसे आएगा? व्हेन यू डू अभ्यास रिपीटेटिवली, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मार्क माय वर्ड, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओके, न शास्त्रादेव जायते, सिर्फ बुक्स पढ़ने से ये सारी चीजें नहीं आएगी। ओके, और इसीलिए आयुर्वेद के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, generally we are depending on the slokas and the translation, that's it, ayurveda is over। अभी तक वैसा ही चल रहा है इन जनरल, मगर आज हमें हमारे जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नजरिया है, वो थोड़ा सा चेंज करना। यू हैव टू चेंज योर आईज। ओके, कि आपको कैसे आयुर्वेद पढ़ना है, उसको अंदर ईच एंड एवरी श्लोका, ईच एंड एवरी वर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू नो। ओके, आयुर्वेद के अंदर एक भी वर्ड ऐसा नहीं है, या कोई भी संहिता के अंदर एक भी वर्ड ऐसा नहीं आएगा जो ऐसे ही उसके श्लोक के अंदर या ऐसे ही बुक्स के अंदर रख लिया होगा। ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ ग्रेट मीनिंग। ओके, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर, प्लीज जब भी आप आयुर्वेद पढ़ो, आदर के साथ जो है वो होना चाहिए। ओके, जैसे ऐसे एग्जामिनेशन पास करने के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर जब भी आप प्रैक्टिसिंग करने जाते हो तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द शास्त्र। ओके, तो यहाँ पे जो श्लोक है वो आपको सिखाता है कि आपको अगर एक्सपर्ट बनना है कोई भी फील्ड के अंदर, तो यू हैव टू डू अभ्यास विथ कर्म सिद्धि। ओके, और कर्म सिद्धि कब आएगी? व्हेन आप रिपीटेटिवली उस पर्टिकुलर कर्म को करते जाओगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नहीं ज्ञान अवयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानम उत्पद्यते, चरक विमान स्थान 4/5। ओके, यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन करना है कैसे ये श्लोक हमें दिखाता है कि प्लीज डोंट डू जीपी इन आयुर्वेदा। ओके, being an kaya chikitsa student, being an ayurvedian, you have to see the body and the mind as a whole thing। okay, जैसे कि अगर इंडिया को जानना है तो गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटका को आप देख लोगे तो इंडिया को पहचान जाओगे, तो नहीं होगा। ओके, यू कांट इमेजिन होल इंडिया इन अ सिंगल स्टेट, आपको सब जगह से उसका इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप सिर्फ नी पे देख रहे हो, वहां पे स्वेलिंग है, देन यू कैन से डायरेक्टली कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आमवात है, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग। यू हैव टू सी दी अग्नि फर्स्ट। ओके, तो ईच एंड एवरी शास्त्र, द डिफरेंट संहितास आर इंटररिलेटेड, each and every स्थान in the samhitas are interrelated, and you have to, चिकित्सा स्थान का कोई रेफरेंस है तो उसका अगला जो होगा रेफरेंस वो आपको सूत्र स्थान में ढूंढना पड़ेगा, सूत्र स्थान में है तो निदान स्थान का रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट द होल थिंग। अगर आप ऐसे पढ़ोगे पर्टिकुलर आयुर्वेदा को, देन ओनली यू कैन सी द काया चिकित्सा, बेस्ट काया चिकित्सा, यानी कि द ट्रीटमेंट पर्पस। ओके, द फर्स्ट थिंग that you have to know the whole area of the body। okay, the third one जो और ज्यादा हमें डिटेल में लेके जाता है कि कैसे हमें एग्जामिनेशन करना है, तो उसके अंदर लिखा है चरक सूत्र स्थान 20/20 के अंदर रोगम आदौ परीक्षेत। यहाँ पे ईच एंड एवरी वर्ड अगेन आपको ध्यान रखते हुए पढ़ना है। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म विशग पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। ओके, तो रोगम आदौ परीक्षेत यानी कि आदौ यानी कि फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, परीक्षित ऑफ रोग यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज आपको करना है। सेकेंड, ततो अनंतरम औषधम, देन ओनली यू कैन इमेजिन दी डिसीज, इमेजिन दी मेडिसिन। ओके, इमेजिन, नॉट डायरेक्टली यू जस्ट डायग्नोस एंड राइट दी प्रिस्क्रिप्शन। ओके, फर्स्ट थिंग
रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषध, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट मेडिसिन्स। ततः कर्म विषग पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरे। ओके, तो ये है कर्म विषग का। देन ओनली पश्चात, आफ्टर दैट, ज्ञान पूर्वम, विथ योर इंटेलेक्चुअल माइंड, just make a analytical mind active, and then only you can samachareta. Samachareta means then only you can prescribe. Prescription बाद में आएगा. First you have to diagnose disease, then medicine, think about medicine, then correlate with both the things, and lastly you have to prescribe. Okay, तो ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, डायबिटीज इज इक्वल टू क्या आएगा, लीवर के मेडिसिन, यानी कि लीवर द्रव्यज, देन पैनक्रियाज के द्रव्यज, एंड देन सिंपल मेदे द्रव्यज, एंड यू आर प्रिस्क्रिप्शन दिस ऑल थिंग्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट सूत्र फ्रॉम चरक सूत्र स्थान 18, विकाराणाम कुशलो न जिन्हीयात कदाचन, न हि सर्व विकाराणाम नामो अस्ति ध्रुवा स्थितिः, स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थान अंतर्गत च इव जनयति आमयान बहुन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे आपको, क्यों दोष दुष्य देश काल बल वय ये सारी चीजें जानना क्यों जरूरी है, कि इनकेस अगर आप ये सारी चीजों में कुशल होते हुए, यानी कि दक्ष होते हुए भी अगर डिसीज का नाम डिसाइड नहीं कर सकते, देन इट्स परफेक्टली ओके। सूत्र स्थान में उन्होंने बोल दिया है। ओके, अगर आपको डिसीज का नाम मालूम नहीं है या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा डिसीज है, तो इट्स परफेक्टली ओके, नॉट नेसेसरी टू मेक अ नेम पर्टिकुलरली ऑफ एनी डिसीज। ओके, न ही सर्व विकारा नाम नामो अस्ति ध्रुवास्ति, उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विकारों के नाम होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो होंगे, क्योंकि आप देखने जाओ चरक चिकित्सा में कितने डिसीज है, 28। ओके, तो 28 डिसीज में से हम देखो कि सिर्फ इतने ही डिसीज होंगे, लिस्ट ऑफ डिसीज इज मोर देन दैट, मगर यही हमें देखना है, नहीं सर्व विकारा नाम, सभी विकारों के नाम, ऐसे डिसीज अब टैग लाइन जो है वो नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए। स एव कुपितो दोष समुत्थान विशेषतः। ओके, स एव कुपितो दोष समुत्थान विशेषतः स्थान अंतर्गत च इव जनयति आमयान बहु। तो आपको क्या देखना है, क्या उसके ऊपर ध्यान में रखना है, फर्स्ट थिंग कुपितो दोष समुत्थान, यानी कि दोष का जो स्थान है वहां से उसका कुपित होना कैसे शुरू हुआ है वो आपको जानना जरूरी है। पैथोफिजियोलॉजी कैसे शुरू हुई है वो जानना जरूरी, इसीलिए हिंदी में भी जनरली बोला जाता है कि जो आयुर्वेद है वो जड़ मूल से, यानी कि बाय रूट वो ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से कौन सा दोष कुपित होता है, देन दे लीड्स टू द पैथोफिजियोलॉजी एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। ओके, तो दिस इज द यूनिक थिंग जो आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि कहाँ से डिसीज या डायग्नोसिंग ऑफ डिसीज और ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज शुरू होता है। ओके, और देन स्थान अंतर्गत इव जनयति, देन वो कौन से स्थान पे जाके जो है स्थान संशय होके वहां पे डिसीज क्रिएट करता है, ये सारी चीजें बाद में आपको करनी है। ओके, एक तो माइंड के अंदर क्लियर रख लो, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आपको वो पर्टिकुलर डिसीज का नाम लिखना ही है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, बट डायग्नोसिस के अंदर आप क्लियर होने चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए बाय द इंटेलेक्चुअल पावर, बाय द बुद्धि। ओके, यू हैव टू डिसाइड हाउ द पैथोफिजियोलॉजी जेनेसिस हैपन। ओके, कैसे पूरा डिसीज जो है वो शुरू से लेकर एंड तक, अभी के सिनारियो तक वो आया है। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर ये बात ध्यान में नहीं रखेंगे हम, ओके, या तो आगे के जो हमने बात करी कि हम पहले रोग के बारे में, औषध के बारे में नहीं देखेंगे और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, तो क्या हो, तो वहां पे भी आंसर मिल जाता है हमें चरक सूत्र स्थान के अंदर 20 चैप्टर्स के अंदर, यस्तु रोगम अविज्ञाय कर्म आरभते विषम अपि औषध विधान ज्ञस्तस्य सिद्धि यदृच्छया। ओके, क्लियरली कितना सोफिस्टिकली उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप आयुर्वेदिक जीपी कर रहे हो विदाउट टेकिंग द होल दशविध परीक्षा और दिस टाइप ऑफ थिंग, होल द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस,
और ऐसे ही आपने चालू कर दिया, रोग के बारे में आपको पता नहीं है, डायग्नोस्टिक टूल के बारे में पता नहीं है, और आपने कर्म आरभते विषय, यानी कि आपने कर्म शुरू कर दिया, यानी कि ट्रीटमेंट चालू कर दी, प्रिस्क्रिप्शन, देन मेडिसिन, देन पंचकर्म, देन पथ्यापथ्य, जस्ट रैंडमली आपने दे दिया, जैसे कि आम बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देन सिंहनाथ गुगर, देन आपको करना है लंगर, सिंपल। इतना अगर आपने चालू कर दिया, अपि औषध विज्ञान ज्ञस्तस्य सिद्धि यदृच्छया, तो सिद्धि यदृच्छया उसमें जो भी सक्सेस मिलने वाली है, ओके, मार्क माय वर्ड, उसमें अगर आपको बाय चांस सक्सेस मिल गई तो वो क्या कहा जाएगा, बाय चांस सक्सेस, ओके, बाय चांस, ओके। उसमें आपने और ज्यादा अपने इंटेलेक्ट का उपयोग नहीं किया, वो तो द ग्रेस ऑफ आयुर्वेदा है कि वहां पे आपको ट्रीटमेंट का रिजल्ट जो है वो अच्छा मिला, ओके। तो दिस इज द थिंग जो हर बार टकोर क्या बोलते हैं ना, कि हर बार हमें एक छोटी सी जो है स्लैप, जो भी चरक ऋषि है या सुश्रुत ऋषि है या वाग्भट जी है, वो सारे के सारे हमें थोड़ा थोड़ा टकोर मारते रहते हैं या स्लैप मारते रहते हैं कि भाई यू हैव टू बी अवेयर, दिस इज द रॉन्ग वे, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, चरक विमान स्थान के अंदर अगेन द लास्ट पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि अगर आप विशेषज्ञ हो, यानी कि वैद्य के रूप में आप वहां पे काम कर रहे हो, एंड ऑल द यू नो द होल सिनारियो, होल द डायग्नोस्टिक टूल्स एंड पंचकर्मा एंड ऑल, फिर भी आप फेल हो सकते हो, कहाँ पे, तो ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन, यानी कि आपकी ज्ञान बुद्धि ऑलरेडी प्रदीप्त है, ओके, ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में है, आपने अच्छी तरह से अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल वे में सब कुछ, यो न अविशति तत्वविद, अविशति, विशति यानी एंटर होना, यू हैव टू एंटर इन इट, ओके, अविशति यानी एंटर न होना। तो ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन, आप ज्ञान बुद्धि से प्रदीप्त होते हुए भी अगर एंटर नहीं होते, कहाँ पे एंटर नहीं होना है, आतुरस्य अंतरात्मानम, ओके, आतुरस्य अंतर आत्मानम, अगर आप पेशेंट के अंतर आत्मा यानी कि मन के ऊपर या हार्ट के ऊपर, या उसको ऐसी एक फेमिलियर फीलिंग अगर नहीं मिली, या उसका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि यस दिस इज द डॉक्टर या दिस इज द वैद्य जो मुझे कंप्लीटली जो है हील कर देगा या कंप्लीटली क्योर करेगा मेरे डिसीज को, अगर ऐसा ट्रस्ट नहीं आया, ओके, तो न रोगे न चिकित्सति, तो वो रोग भी वहां पे ट्रीट नहीं होगा, ओके। टेम्पररी डेफिनेटली यदृच्छया से आपको ट्रीटमेंट या जो सक्सेस मिलने वाली है वो मिल जाएगी, मगर अगेन सेकेंड टाइम जो है वो पेशेंट आपके पास आने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, ओके। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस श्लोका, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो आपको हमेशा याद करवाते रहेगा कि यू हैव टू कंसल्ट विथ कॉन्शियस माइंड, ओके। सिर्फ संहिता के रेफरेंस आपके साथ में रहेंगे और यू जस्ट प्रिस्क्राइबिंग होल द थिंग्स, आपके पास सभी संहिता पाहट होगी माइंड के अंदर, फिर भी यू मे फेल, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एंटरिंग द हार्ट, ओके, पेशेंट्स हार्ट। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो हमेशा आपको याद करवाती रहेगी, यू हैव टू बी पोलाइट, ओके। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी आवर एक्चुअल टॉपिक, जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान में रखना है और समझना है 0 to 9 कितने इंपॉर्टेंस है हमारे इस मैथ्स ऑफ आयुर्वेदा के अंदर, ओके। तो जो श्लोका है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12 चैप्टर 67 by 68, दुष्य देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वयः सत्वम सात्म्य तथा आहारम अवस्थाश्च पृथग्विदा सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्ष्य एषां दोष औषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स्खलति न स स्खलति जात उचित, ओके। और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन द सेकंड लाइन, ओके। इंपॉर्टेंस उन्होंने ऐसे ही बता दिया है कि यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये जो नाम है आपको डेफिनेटली सब पता होंगे, दूसरे देश काल, मगर सेकंड लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षा, दो बार उन्होंने सूक्ष्म वर्ड का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना, दो बार, इट मींस इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, वो आपको समझाने के लिए। सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षा, एग्जामिन दी माइन्यूटली, जितना आप माइन्यूट वे पे उसको एग्जामिन कर सकते हो, एग्जामिन करना चाहिए। किसका एग्जामिन करना है? दोष, ओके। और ऊपर जितने भी हमें
क्राइटेरियाज दी है, सारे को हमें माइन्यूटली एग्जाम करना है औषध निरूपण के लिए, फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द औषध। ओके, यो वर्तते चिकित्सायाम न स्खलति जात उचित। अगर आप इस पूरे डायग्नोस्टिक टूल के साथ में अगर आपने चिकित्सा करने की शुरुआत करी तो कभी भी न स्खलति जात उचित, यानी कि कभी भी आप फेल नहीं होंगे। डेफिनेटली यू कैन ट्रीट साध्य और कृच्छ साध्य और कष्ट साध्य डिसीजेस। ओके, इसमें हमेशा ध्यान में रखना, ये जो 4 टाइप है साध्य साध्यता के, उसमें लास्ट में असाध्य भी बोला गया है। ओके, तो भले ही आपके पास ये सारी नॉलेज है, मगर यू हैव टू डायग्नोस कि दिस इज द असाध्य डिसीज एंड यू हैव टू मूव ऑन। ओके, आपको ट्रीटमेंट नहीं देनी है वहां पे अगर असाध्य डिसीज आपको पता चलता है तो। ओके, क्योंकि आयुर्वेद में वो भी बोल दिया है चरक ऋषि ने कि अगर आप असाध्य रोग है अगर आपको पता है और आप ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हो तो क्या होगा, डेफिनेटली आपकी जो फेम और नेम है उसकी हानि हो जाएगी। अल्टीमेटली पेशेंट्स जो है आपके पास में जो ट्रस्ट रहेगा वो टूट जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियली डेफिनेटली अभी के सिनेरियो में उसमें काफी हानि हो सकती है। तो अगर आपको पता है असाध्य डिसीज तो ये सारी चीजें होते हुए भी यू डोंट हैव टू ट्रीट द पेशेंट। ओके, जो चरक ऋषि और अष्टांग हृदय में भी बोला गया है, तो ये ध्यान में रखें। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो दोष इज द वेरी बेसिक थिंग, 3 पिलर्स ऑफ द होल बॉडी, जो हमारे शरीर को ठीक और रोगी होने के लिए सबसे ज्यादा जवाबदार जो है वो माने जाते हैं। ओके, अभी दोष के बारे में जैसे कि हम बात करें तो दोष इट्स फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट एक्चुअल और डायरेक्टली विजिबल। ओके, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दोष बाय अनुमान प्रमाण। ओके, क्योंकि दोष को समझने के लिए उनको एक गुणों को समझना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तत्र रुक्ष एटसेट्रा जो गुण बोले गए हैं, पित्तम संस्नेह तीक्ष्ण उष्णम जो उसके गुण बोले गए हैं, कफ संस्नेह, तो ये सारे गुण जो है हमें समझाते हैं कि दिस टाइप ऑफ गुण कंटेन्स द दोषास। ओके, तो गुणों के थ्रू हमें दोषों को जानने की जरूरत होती है और हमारा नजरिया वही होना चाहिए कि कैसे हम उस गुण को दोष के साथ में कोरिलेट करें और अल्टीमेटली डायग्नोस कर पाए। ओके, तो उसके अंदर दिस इज द शारीरिक दोष। सेकंड दोष इज द सेकंड टाइप ऑफ दोष इज मानसिक दोष, तम एंड रज। ओके, तो उसके लिए भी हमें डायग्नोस्टिक पर्पस जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो जैसे ही वो बैठते हैं और जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, यू हैव टू डायग्नोस which मानसिक दोष is predominant. Okay, you can easily diagnose with the talking pattern, with the anxiety, with the depressive feeling, with the different type of, with the chronicity of disease. ये सारी चीजों से हम आराम से तम और रज को डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, तो वात पित्त कफ को डायग्नोस अगर करना है तो सबसे पहले स्थान हमें पता होने चाहिए, लोकेशन आप सबको पता होंगे, आत्मरूप कार्डिनल सिम्टम्स जो उसके रहेंगे कि जैसे ही वो संचय प्रकोप प्रसर स्थान संशय व्यक्ति एंड वेद अवस्था के अंदर जब वो ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उस पर्टिकुलर षट क्रिया काल के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स जो है वो शुरू करेंगे। ओके, एंड लास्ट में प्रकोप लक्षण, अगर प्रकोप हो चुका है इस पर्टिकुलर दोष का तो उसके लक्षण, एंड द लास्ट वन इज द गति, कि वो कहाँ पे स्थान संशय कितनी जल्दी से स्प्रेडिंग कर रहा है पूरे शरीर के अंदर। ये सारी बातों को दोष के अंदर हमें जानना जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेसिक आइडिया ऑफ दोष हमें रहना ही चाहिए। जनरली क्या होता है पता है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करें हम तो दोष को जनरली कोई भी डिसीज हो ना आयुर्वेदिक तो उसमें हम वात पित्त कफ को डाल ही देते हैं। ओके, वातिक अतिचार, वातिक ज्वर और वातिक कास, वातिक श्वास एटसेट्रा। तो ये जो सारी चीजें हैं उसमें हम एक ही सिम्टम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर रुक्ष गुण है तो क्या ये आएगा। ओके, ये अगर स्निग्ध गुण है कफ के अंदर तो ये गुण आएगा। तो जनरली हमारी ये माइंड सेट रहती है वो हमें थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी जो वेद अवस्था है यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस बोले गए अकॉर्डिंग टू दोसास जो टाइप्स बोले गए हैं उसमें अगर आप देखने जाओ तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम रहेंगे जो कार्डिनल सिम्टम के तौर पे बाहर आएंगे, जो मेन सूचक लक्षण जिसे हम बोलते हैं सूचक लक्षण, इससे हमें पता चल जाएगा यस दिस इज द डिसीज जिसको हमें ऐसे ट्रीट करना है। ओके, सो प्लीज वात पित्त और कफ को बहुत ही लाइटली नहीं लेना है,
और प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाओ तो बहुत ही लार्ज वे पे उसे आप डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज कर सकते हो। कई सारे वैद्य ऐसे हैं जो सिर्फ दोष के ऊपर ही ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट उनको दोष के बारे में बेसिक पता चल गया, कौन से उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे शुरू हुई होगी, एंड दे ट्रीटेड वेल एक्चुअली। ओके, तो त्रिदोष जो हमारा है उसको कभी भी लाइट नहीं लेना है, उसके बारे में, उसके डिटेलिंग, उसके पंच प्रकार आर, उसको अच्छी तरह से हमें ट्रीट करना है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि और भी काफी ज्यादा है हमारे टॉपिक के अंदर। ओके, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द दुष्य, यानी कि दोष जो बिगाड़ने वाला है, अभी दुष्य जो बिगड़ने वाला है, जो इफेक्ट करेगा बाय दी दोषास। ओके, तो दुष्य के अंदर जनरली हम क्या करेंगे, सप्त धातु को लेंगे। डेफिनेटली सप्त धातु के मल जो होंगे वो भी इफेक्ट होंगे, एंड अल्टीमेटली हमारे त्रिमलाज है उसे भी इफेक्ट करेगा। ओके, तो त्रिदोष जो है वो ये तीन जगह पे जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अभी नाउ धातु के बारे में अगर हम देखने जाए तो जनरली हमारा जो माइंड सेट रहता है, ये माइंड सेट क्लियर करना बहुत जरूरी है। माइंड सेट जो रहता है वो कैसे रहेगा कि धातु है, ओके, तो अभी ये मेद धातु वृद्धि ओबेसिटी है तो डायरेक्टली वी आर गोइंग फॉर द मेद वृद्धि लक्षणास एंड प्रिस्क्राइबिंग लाइक द लेखनीय द्रव्य। ओके, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब भी उसका बर्थ होता है, क्योंकि धातु निर्माण, ओके, धातु उत्पत्ति एंड धातु निर्माण, देयर आर टू परसेप्शन आर देयर। धातु उत्पत्ति कब होती है, तो वो गर्भ स्थिति के दौरान, यानी कि 9 मंथ्स के अंदर धातु की उत्पत्ति, माइंड माय वर्ड, उत्पत्ति शुरू होती है। ओके, क्योंकि धातु इज अ बंच ऑफ सेल्स, वी कैन से इज अ टिश्यूज। ओके, तो उसकी उत्पत्ति क्या कब होगी, तो गर्भ निर्माण के दौरान। एंड आफ्टर दैट हमेशा धातु पोषण के ऊपर हमें ध्यान में रखना है, धातु पोषण। ओके, और धातु पोषण कैसे होगा, ईच एंड एवरी सेल जो है वो नरिश कैसे होने वाला है, बाय दी फूड। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग जो जिसपे धातु पोषण सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रहता है। फर्स्ट थिंग इज आहार, यानी कि फूड। ओके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ द वे। द सेकंड वन इज अ विहार, द डेली रेजिमेंट, दिनचर्या, ऋतुचर्या एटसेट्रा। ओके, एंड द थर्ड वन इज विचार, द माइंड। ओके, सत्व रज और तम जो उसके गुण है वो भी डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सीधा धातु पोषण के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, इफ यू आर ईटिंग अ फूड विथ ट्रिगरिंग अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि स्ट्रेस के साथ अगर आप खाना खा रहे हो, कोई टेंशन के साथ में खाना खा रहे हो, तो धातु पोषण प्रॉपरली नहीं होगा। इट्स क्लियर वे, वहां पे डायरेक्ट दोष जो है वो इन्वॉल्व न भी होंगे। ओके, शुरुआत के अंदर। मगर अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ट्रिगरिंग के साथ में, यानी कि शांत मन से, एकाग्र मन से, जो हमारे पूरे आहार विधि विधान बोले गए हैं, अगर उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन करोगे तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली धातु पोषण जो होगा वो सही मान में होगा। ये सारी चीजें जानने की जरूरत अगेन क्यों है, क्योंकि हमें बेसिक आयुर्वेद का प्रयोजन सबको पता होगा। द फर्स्ट थिंग इज स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षण, सेकंड थिंग इज आतुरस्य विकार। तो हमें दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सिर्फ आतुर आया और हमें ट्रीटमेंट दे दी देन वो ठीक हो गया, उसके बाद में अगेन हमारा जो रोल आता है वो क्या होगा कि वो जो स्वस्थ उसको मिल गया है, स्वस्थता हमने दे दी है, उसको कैसे सस्टेन कर पाए, तो उसके लिए भी हमें पथ्यापथ्य देना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए भी हमें धातु पोषण का पूरा सिनारियो और फूड ईटिंग की जो हैबिट्स और रूल्स एंड रेगुलेशन इन द आयुर्वेदा, ये सारी की सारी चीजें हमें डिटेल में समझानी पड़ेगी पेशेंट्स को। ओके, तभी जाके वो लंबे समय तक स्वस्थ जो है वो रह सकता है। ओके, सिर्फ दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करने से स्वस्थता मिल जाएगी, इट्स नॉट एस दिस, इट्स अ वन पॉइंट जो उसको सपोर्ट करेगा। मगर यहाँ पे जो सपोर्ट सबसे ज्यादा करना है, जो डेली रूटीन के अंदर उसके फूड के ऊपर सबसे ज्यादा जो महत्व रखना है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो चरक ऋषि ने ही एक जगह पे कहा है, रेफरेंस मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, मगर पथ्यापथ्य अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो औषध की क्या जरूरत है। ओके, और अगर हम पथ्यापथ्य फॉलो नहीं करते तो भी औषध की क्या जरूरत है। ओके, उन्होंने वहां पे भी क्लियर बोल दिया है कि पथ्यापथ्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन थिंग
औषध से भी ज्यादा जिसके ऊपर हमारी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ड होगी. ओके, तो ड्यूरिंग द डिसीज टाइम ऑफ पथ्य पथ्य एंड आफ्टर द क्योरिंग द डिसीज you have to prescribe the patya patya. Both are different, 110% different from each other. Okay, तो this is the thing जो हमें याद रखनी है for the धातु पोषण, mind my word, for the धातु पोषण and balancing of the दोष. जनरली हम यही भूल जाते हैं क्योंकि संधिवात है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिंपल सी मधु प्रमेह है, या फिर कोई भी डिसीज है, जो सिंपल सा ज्वर है. ओके, तो ज्वर के अंदर भी आपको पता होगा जैसे ही ज्वर खत्म होता है उसके बाद में शरीर जो है वो काफी वीक हो जाता है. तो उसको हमें नॉर्मल करने के लिए, उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए वी हैव टू इंड्यूस सर्टेन रसायन द्रव्य और वी हैव टू इंड्यूस सर्टेन पथ्य पथ्य. देन ओनली ही बिकम अ प्रॉपर थिंग. नहीं तो बार बार आपको पता हो कि सीजन जैसे ही चेंज होती है, आई एम टॉकिंग इन लेमन लैंग्वेज, जैसे ही सीजन चेंज होती है कई सारे लोग होते हैं जो बीमार होना शुरू हो जाता है. एंड एलोपैथी जीपी अगर आप देखो वहां पे तो लंबी लाइन लग जाती है पेशेंट्स की, और आयुर्वेद वहां पे एज सच हम मानते हैं एज एन वैद्य कि कोई भी काम नहीं करता है, मगर एक्चुअली वहां पे भी आयुर्वेद का उतना ही सही तरीके से रोल है. तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें वहां पे. तो दूष्य के बारे में जो है वो सप्त धातु, धातु मल एंड मल, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है. उसके स्थान कहाँ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और उसके हाइपर फंक्शन क्या होंगे, क्षय वृद्धि लक्षण, उसके बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए. देन ओनली वी कैन से दिस इज द थिंग. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो वर्ड है कोलेस्टेरॉल, वो जनरली हम मेद धातु के साथ में कोरिलेट करते हैं. ओके, मगर जब भी हृदय की बात आती है, हृदय के अंदर अगर कोई भी ब्लॉकेज हो या कोई भी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो चुकी हो, बाईपास वगैरह करना होता है, तो वहां पे अगर आप संहिता के अंदर देखो तो हृदय रोग, रुद्र रोग जो है उसके एक्सप्रेशन के अंदर वहां पे बोला गया है रसव गतो धातु. प्लीज लिसन दिस प्रॉपरली. रसव गतो धातु, वहां पे मेद धातु का उल्लेख ही नहीं है कहीं पे भी. ओके, और if we are treating like modern science कि cholesterol is equal to मेद धातु, then लेखनीय द्रव्य and just go on. ओके, तो डेफिनेटली वहां पे हृदय की चिकित्सा नहीं हो पाएगी क्योंकि रसगत धातु वहां पे क्लियरली बोला है कि आपको क्या ट्रीट करना है, रस धातु को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देनी है. देन ओनली यू कैन सी द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर सक्सेस इन द डिसीज. ओके, तो ये बातें छोटी छोटी बातें होती है, बहुत ही स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो हम इन जनरल मिस कर देते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हम ट्रीट करें. ओके, तो दिस इज द थिंग कि गर्भ उत्पत्ति पे ध्यान रखना है कि कैसे. आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बाय बर्थ, अगर अभी के सिनेरियो में तो सबको पता होगा कि जब भी बर्थ हुआ होता है बेबी का, या तो उस वक्त उसकी कंडीशन कैसी थी, मातृ की कंडीशन कैसी थी, एंड देन राइट नाउ उसकी कंडीशन कैसी है. तो यू कैन ऑल्सो डिसाइड दी वैगुण्य, ओके, ऑफ द धातुस, लाइक जेनेटिक डिफेक्ट और डिफेक्ट इन द टिश्यूज. जो बर्थ के समय क्या था और अभी के सिनेरियो में क्या है, ये भी आप पहले से बाय द सिंपल वन क्वेश्चन यू कैन डायग्नोस. ओके, देन आगे हम जाएंगे तो बल, जो थर्ड वन है बल, यानी कि 3 टाइप्स जनरली बल के बोले गए हैं, प्रवर, मध्य एंड अवर. ओके, और बल को हम कैसे मानते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, व्यायाम शक्ति. ओके, तो व्यायाम शक्ति जितनी होती है, यानी कि बॉडीली स्टेमिना कितना है. कोई जो होता है एक वो 10 किलोमीटर एक साथ में चल सकता है, उसको थकान नहीं लगती. कोई व्यक्ति जो है वो 2 किलोमीटर चलेगा फिर भी थक जाएगा. कोई जो है वो 5 किलोमीटर चलेगा मगर फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि नहीं वो ज्यादा थक चुका है. तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. हमें उसको एग्जामिन करना है कि उसका बल कैसा है. तो उसके आधार पर अगर बल सही होगा, इट मीन्स अग्नि इज गुड, एंड जो भी आप औषध दोगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा. ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है, प्रवर, मध्य और अवर बल यानी कि स्टेमिना को डिफाइन करना, समझना. ओके, जैसे कि कई बार हार्ट डिसीज में भी वैसा होता है. मैं वही एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंड आपको हो पाएगा कि हार्ट ब्लॉकेज है और जैसे ही पेशेंट चल के आता है, 15 या 20 स्टेप्स चल के आपके केबिन में आएगा और जैसे ही बैठेगा यू कैन फील हर ब्रेथ और हीज ब्रेथ. ओके, तो ब्रेथ जैसे ही आपको पता चलेगा, ब्रेथलेसनेस फील होगी, देन यू कैन डायरेक्टली सी कि वहां पे बल जो है उसका काफी कम है.
ओके, तो ये सारी चीजें माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जैसे ही पेशेंट आपके कैबिन में एंटर होता है वहां से आपका ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष प्रश्न और ये सारी परीक्षाएं जो है वो चलती रहनी चाहिए। आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है वो 100% एक्टिव होना चाहिए। ओके, देन अगेन देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ बल, दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ बल: सहज, कालज एंड युक्तिकृत। ओके, तो ये बल यानी कि इनहेरिटेंट, शरीर के अंदर जो सो कॉल्ड हम इम्यूनिटी कह सकते हैं उसको, वो बल भी कैसा है वो भी हमें डायग्नोस करना है। तो कैसे करेंगे कि बार बार बीमार कितना पड़ता है, रिपीटेटिवली उसको क्या क्या बीमारी होती है, ये बीमारी फर्स्ट टाइम हुई है या उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, ये सारी चीजें जो है अगर आप अ, पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सहज बल यानी कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो काफी स्ट्रांग है। ओके, इन केस एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज हो सके तो इंटरेक्शन थोड़ा सा रखिए तो मैं भी थोड़ा सा बोर ना हूँ। कौन सी प्रकृति के अंदर बल जो होगा वो प्रवर होगा? इफ यू डोंट माइंड प्लीज आंसर कर सकते हो तो। यस, कौन सी प्रकृति के अंदर बल जो होगा वो नेचुरली प्रवर होगा? यस, एनीबडी प्लीज। Yeah, Abhishek, what happened? नहीं, सिंपली आई एम आस्किंग क्वेश्चन। ओके, गुड, कफ, एक्सेलेंट। एंड कौन सी प्रकृति के अंदर सहज बल जो है वो अच्छा होगा? सहज बल, एंड वो विल नीड, गुड, कफ, एक्सेलेंट, एंड वो विल नीड मोर युक्तिकृत बल। आई थिंक यू नो युक्तिकृत बल, ओके, कि कैसे युक्तिकृत बल जो है वो, यानी युक्ति से हम अपना स्टेमिना एंड इम्यूनिटी दोनों बढ़ा सकते हैं। वात, एक्सेलेंट सोनालिका, एक्सेलेंट पूजा, श्रेया। तो ये बेसिक आइडिया जो है हमें रखना बहुत जरूरी है। ओके, प्रवर मध्य नवर द स्टेमिना एंड द सहज कालज एंड युक्तिकृत। कालज का हम आगे जाके बात करने ही वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज काल। काल यानी कि टाइम। तो कहाँ कहाँ पे हमें टाइम का इस्तेमाल करना है? तो फर्स्ट थिंग, एज रिलेटेड टाइम, यानी कि वृद्धावस्था, मध्यमावस्था, युवावस्था एंड बालावस्था। देन ऋतु, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन आर देयर, उसके अंदर कौन कौन सी सीजन के अंदर नेचुरली प्रकोप दोष कौन से होते हैं, कहाँ पे शमन होगा, तो वहां पे कौन कौन से पंचकर्म फॉर द स्वस्थ पुरुष, फॉर द रोगी पुरुष हमें करना है। ओके, एनीबडी कैन टेल वमन कर्म कब करना है हमें? वमन कर्म कौन सी ऋतु में? एक्सेलेंट, वसंत ऋतु में। एंड रक्त मोक्षण? शरद, गुड, रक्त मोक्षण शरद ऋतु के, क्योंकि पित्त प्रकोप वहां पे ऑलरेडी होता है। ओके, इट्स एक्सेलेंट। देन द थर्ड काल है जो सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, वो है आहार पाचन। ओके, आहार पाचन के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ अवस्था पाक जो बोले गए हैं, ओके, उसके बारे में जानना। देन एक्शन ऑफ रस, वीर्य एंड विपाक, तीनों के अंदर जो है वो काल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इन जनरल सिंपल लेमन लैंग्वेज के अंदर एग्जांपल मैं दूंगा, वो है कई बार, जस्ट नोटिस दिस, अगर आप क्लिनिक के या डिपार्टमेंट में बैठते हो वहां पे, सिंपल अम्ल पित्त का पेशेंट होगा, सिंपली एसिडिटी उसकी हो रही होगी। ओके, एक हमेशा क्वेश्चन पूछना कि रात को कितने बजे आपको एसिडिटी की फीलिंग आती है? ओके, स्पेसिफिकली दिस इज द स्पेसिफिक टेक्टिकल क्वेश्चन। हमारी संहिता के अंदर डेफिनेटली ये सारी चीजें नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक अ मीनिंग आउट ऑफ द सर्टेन थिंग। तो वहां पे आपको एक आंसर प्रोफाउंडली मिलेगा, दैट इज इन बिटवीन 1 to 3 AM। ओके, इन बिटवीन 1 to 3, रात को 1 से 3 बजे के बीच में दे फील एसिडिटी एंड दे मे राइज, मीन्स आपकी नींद टूट जाएगी एंड आप खड़े हो जाओगे एंड यू फील मोर अनकंफर्टेबल अदर देन होल डे। ओके, क्योंकि वहां पे भी आपको पता है कि मिडनाइट जो है उसमें स्पेसिफिकली
पित्त का टाइम बोला गया है। और जिस किसी को भी पेप्टिक अल्सर होंगे, यानी कि आमाशयिक शूल जो आयुर्वेद के अंदर हम बोलते हैं, या फिर सिंपली अम्लपित्त होगा, तो स्पेसिफिक ये जो टाइम है वो हमें जानना पड़ेगा। ओके, जैसे कि वात रोगी हो गए तो उसमें वर्षा ऋतु के अंदर डेफिनेटली उसके सारे सिम्टम्स जो है इन नेचुरली बढ़ जाएंगे। ओके, वैसे ही कफ के अंदर अगर कोई भी डिसीज हुआ होगा, जैसे कि स्पेसिफिक अस्थमा और कफज कास, तो उसके अंदर भी वसंत ऋतु के अंदर और ग्रीष्म ऋतु के अंदर दे फील मोर अनकंफर्टेबल रादर देन होल कंपेरेटिवली, कि दूसरे जो हमारे सीजन्स रहते हैं उसके मुकाबले। ओके, तो ये कंपैरिजन वी हैव टू मॉनिटर ऑलवेज। और ये क्वेश्चंस, ये बात अगेन हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप पेशेंट्स को या आतुर को क्वेश्चन पूछते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हाँ के अंदर होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको रात को एसिडिटी फील हो रही है, तो पेशेंट शुड हैव टू आंसर यस। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको ज्यादा रिस्पेक्टफुल और ज्यादा, जैसे हमने बात करी थी अंतरात्मानम। ओके, तो आप सीधे पेशेंट्स के हृदय के अंदर या मन के अंदर सीधे घुस सकते हो। ओके, 10 क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें से 8 क्वेश्चन के आंसर अगर हाँ आ रहे हैं, जैसे कि ये काल के अंदर, एज के अंदर, आप बचपन में थे तो बचपन के अंदर आपको ज्यादा कफ की प्रॉब्लम होती थी, तो डेफिनेटली पेशेंट शुड से यस। तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस एक आर्ट है जो हमें क्रिएट करनी है। ओके, आप एक एक लिख के या पूरे अपने जो प्रिस्क्रिप्शन पैड होंगे उसके अंदर आप बैठ जाओगे, ओके वात दोष का आपके कोई है सिम्टम, पित्त दोष का है, कफ दोष का है, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ओके, ये प्लीज ध्यान में रखना, टू द पॉइंट। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये पेशेंट्स के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये पर्टिकुलर दोष और दूष्य जो है वो बिगड़े हुए दिख रहे हैं। ओके, तो उसके बाद में जो लक्षण, साइन एंड सिम्टम से ही आपको बेसिक आइडिया आ जाना चाहिए कि यस दिस इज द डिसीज और ये सारी चीजें। एंड देन एक्चुअल रोल आपका वहां पे शुरू होगा कि यू हैव टू मेक कंफर्म, आपने जो सोचा है इंटेलेक्चुअली बुद्धि का उपयोग करके, वो आप कंफर्म करेंगे। किससे कंफर्म करेंगे? तो ये दुष्य देश बलम कालम से हमें कंफर्म करना है कि ये दिस इज द रूट कॉज ऑफ द होल डिसीजेस। ओके, देन अग्नि, डेफिनेटली अग्नि के टाइप सभी को पता होंगे। ओके, मगर इसके अंदर ये अग्नि सबसे ज्यादा जानना जरूरी क्यों है? एक तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि पथ्य पथ्य प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा अग्नि जो है महत्व रखता है। ओके, भले ही कृष पुरुष हो, माइंड माय वर्ड, भले ही कृष पुरुष हो, आपको वहां पे जो है कृष पुरुष को ज्यादा नरिशमेंट वाला फूड जो है वो देना है। ओके, मगर उसकी अग्नि जो है वो वीक हो, यानी कि मंदा अग्नि हो और विषमा अग्नि हो। ओके, और वहीं पे आप सीधा उसको अश्वगंधा या शतावरी या फिर उसको हैवी औषध, उड़द का या उड़द की खिचड़ी, ऐसा कुछ अगर आप देना शुरू कर दे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली यू फेल योर ट्रीटमेंट। ओके, स्पेशली इन पंचकर्मा ऑल्सो, उसमें अगर आपने हैवी गुरु द्रव्य युक्त बस्ती दे दी और उस वहां पे अग्नि वहां पे बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली यू दे में फिल दी बस्ती व्यापक। तो ये सारी चीजें इसीलिए अग्नि के बारे में जाननी है। सिर्फ सही है, ठीक है और चलो हम औषध दे देते, एक सिंगल रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सारे ट्रीटमेंट को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ओके, सिंगल। तो इसीलिए अग्नि को, उसकी जो अभ्यवरण शक्ति है, कितनी क्वांटिटी में वो लेगा और कितनी देर के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अग्नि के अंदर अजीर्ण जो होता है, ओके, अगर बंदा अग्नि है और पथ्य पथ्य गलत की वजह से ऑलरेडी जो डिसीज है वो तो रहेगा ही, मगर उसके कॉम्प्लिकेशंस, उपद्रवाज, वो सबसे ज्यादा क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सारी दवाई ठीक तरीके से दी है, ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर गुड, परफेक्टली ओके। ओके, महायोगराज गूगल से टिल दी एरन ब्रुस्ट हरी तक की सब कुछ ठीक है, मगर स्टिल उसको ये तकलीफ और क्यों बढ़ रही है और ये नए सिम्टम्स कैसे आ गए? तो उसका कारण हो सकता है अग्नि। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए बीइंग एन आयुर्वेदियन कि सबसे बड़ा अजीर्ण जो संविधान में बोला गया है, दैट इज औषध अजीर्ण। ओके, औषध अजीर्ण को जनरली हम बाईपास कर लेते हैं। ओके, आपको ऐसा ही लगता है कि हर बार फूड से ही इंडाइजेशन हुआ होगा और अल्टीमेटली वी आर गिविंग मोर एंड मोर वेरेचकास आर देयर। तो ये इंपॉर्टेंटली
जो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी मेडिसिन भी आप ना दे, ऐसे औषध द्रव्य कोई ना दे दे उस पर्टिकुलर पेशेंट को, अग्नि ध्यान में रखते हुए कि वहां पे औषध अजीर्ण हो जाए। ओके, तो इसीलिए अग्नि का इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में रखना है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रकृति। ओके, प्रकृति में आपको पता है 7 टाइप ऑफ प्रकृति, मगर मानसिक एंड शारीरिक उसमें भी अलग अलग टाइप्स है। मगर वात पित्त कफ की अगर हम बात करें, और एज सच शास्त्रों के अंदर जैसे लिखा हुआ है अभी के सिनारियों में कि ज्यादातर कलयुग के अंदर जो है वो ड्यूअल प्रकृति ज्यादा देखी जाती है रादर देन सिंगल और ट्रिपल। ओके, ज्यादातर अगर आप अपने आप को प्रिस्क्राइब करोगे या अपने आप को भी एग्जामिन करोगे तो यू फील द ड्यूअल प्रकृति, यानी वात पित्त पित्त कफ और कफ वात। okay? और उसके भी ईच एंड एवरी लक्षण आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके, टू ट्रीट द डिसीज और टू ट्रीट द स्वस्थ पुरुष। ओके, स्वस्थ पुरुष के प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रकृति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि आपको पता है कि प्रवर बल जो है वो कफ प्रकृति के अंदर रहेगा, तो आपको लुक से ही पता चल जाएगा कि ये प्रवर बल है, तो वी हैव टू एग्जामिन हिज प्रकृति एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो। क्योंकि कफ प्रकृति है तो उसकी अग्नि जो होगी वो थोड़ी सी लोअर साइड पे भी होगी, यानी कि होल मेटाबॉलिक सिस्टम आर लोअर साइड पे। आई एम नॉट टॉकिंग मंदा अग्नि, मंद होगी या कम हो जाएगा, दैट नॉट आई एम टॉकिंग। ओके, सिंपली लोअर साइड पे होगी कंपेयर विद दी वात एंड कफ, वात एंड पित्त। ओके, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रिस्क्राइब द होल सिनेरियो ऑफ द ट्रीटमेंट एंड पंचकर्मा एंड ऑल। ओके, एंड वात पित्त कफ प्रकृति से भी अगर आप देखने जाओ तो माइंड सेट, द मेंटल बिहेवियर, मेंटल एग्जीक्यूशन, जैसे कि वात वाला है तो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंटली बोलेगा। ओके, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक कोटेशन आपको दे दूं कि वात वाला अगर आपके पास पेशेंट आता है और कैसे उसकी हिस्ट्री होगी, ओके, तो उसकी हिस्ट्री ही इररिलेवेंटली शुरू होगी कि शुरुआत मुझे यहाँ से हुई थी, मुझे ये पेन हो रहा है या मुझे ये पेट में दर्द हो रहा है, मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो सीधा आके बोलेगा कि सर मैंने ये डॉक्टर से पहले आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात करी, अगर ये ट्रीटमेंट करी, पंचकर्मा करवाया, ये सब कुछ करवाया, पैसे मैंने खर्च लिए, मगर फिर भी मेरी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। ओके, तो द इररिलेवेंट थिंग उसको आप कैसे कॉन्सेंट्रेटली बाहर निकालोगे और टू द पॉइंट, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट होता है वात प्रकृति पर्सन से हिस्ट्री लेना, एक्चुअल हिस्ट्री लेना, और उसके लिए हमें और ज्यादा स्टेबल और वी कैन से गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ओके, जब तक वात प्रकृति वाला अपनी पूरी हिस्ट्री बता नहीं देता, यू डोंट हैव टू आस्क इन बिटवीन द क्वेश्चंस। ओके, आपको पूरी हिस्ट्री या जो लिसन करना है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू हैव टू एनालाइज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे काम में आएंगे मुझे डायग्नोसिस के लिए। ओके, तो इसीलिए प्रकृति इट्स वेरी नेसेसरी। पित्त वाला क्या करेगा, तो जैसे ही पित्त प्रकृति पर्सन आपके पास आएगा, हाँ, आप टू द पॉइंट, वो उसके प्रिस्क्रिप्शन बहुत जो डिस्क्रिप्शन होगा बहुत अच्छा होगा, आप अच्छी तरह से उसको दे दोगे, सारी ट्रीटमेंट सही तरह की चलेगी, उसको अगर ठीक भी हो रहा होगा तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इन केस अगर वहां पे थोड़ा भी आपने, जैसे कि एक हफ्ते में ठीक हुआ, बाकी के 10 दिन के बाद फिर से वापस हो गया, तो डेफिनेटली द क्रोध वाला स्वभाव पित्त प्रकृति का वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, सेम एज इट इज कफ। ओके, कफ के अंदर भी कफ जनरली हिस्ट्री देने के लिए ही वो बने नहीं है। ओके, सर कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे ये चल रहा है, पैसा वाला द थिंग, द आलस्य वाला थिंग, वो सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंटली वहां पे एग्जीक्यूट होता है। तो वो भी हमें उससे हिस्ट्री निकालना, प्रॉपर हिस्ट्री निकालना, वो एक आर्ट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद में द वय, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वय। वय यानी कि बाल, युवा एंड वृद्ध। तो हमें पता है कि बाल के अंदर ज्यादातर कफ जो है वो प्रिडोमिनेटली रहेगा, तो उसके डिसीज ज्यादा होने वाले हैं, तो उसको कैसे हम टर्न आउट करें, क्योंकि कफ जो जनरली बाल के अंदर रहता है इट्स लीड्स टू द गुड इम्यूनिटी, तो हमें उतना ज्यादा भी कफ क्षय नहीं करना है कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो हैम्पर हो जाए। ओके, ज्यादातर कफ एंड इम्यूनिटी इज इक्वल टू वी कैन से, ओके, वी कैन कोरिलेट एटलीस्ट। देन युवा के अंदर ज्यादातर हमारे धातु पोषण जो होता है वो सही मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में वहां पे चल रहा होता है, इसलिए पित्त एग्रीवेशन होता है, द मेटाबॉलिज्म इज गुड कंपेयर टू द बाल एंड वृद्ध। एंड वृद्ध
अल्टीमेटली वहां पे डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड वात जो है वो एग्रीवेशन वहां पे दिखेगा। तो हमेशा वहां पे ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी वृद्ध पेशेंट आए आफ्टर 50-60 के बाद में, तो ऑलवेज यू हैव टू प्रिस्क्राइब वन रसायन मेडिसिन फॉर द वृद्ध। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें तो होगी, और स्पेशली अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ में रसायन ट्रीटमेंट ना दे पाए, मगर जब भी वो ट्रीटमेंट आपकी जो पर्टिकुलर डिसीज की चल रही होती है वो खत्म हो जाने के बाद यू शुड गिव रसायन ट्रीटमेंट एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। ओके, आप कोई भी अकॉर्डिंगली प्रकृति उसको यूज कर सकते हो, रसायन डिफरेंट टाइप ऑफ च्यवनप्राश अगस्त्य रसायन या सिंपल रसायन चूर्ण, ये सारी चीजें यूज हो सकती है, मगर फॉर मिनिमम 6 मंथ टू न्यूट्रलाइज द होल सप्त धातुज जो है आप वो कर सकते हो। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें जब भी कहाँ पे रसायन देना है, कहाँ पे एक्चुअल ट्रीटमेंट करनी है। देन सत्व यानी कि प्रवर मध्य एंड अवर, उसके अंदर भी जो है वो प्रवर मध्य एंड अवर आएंगे। तो अगेन प्रवर सत्व जो होगा वो कफ के अंदर आपको दिखेगा, मध्य होगा वो पित्त के अंदर, एंड अवर होगा वो वात प्रकृति के अंदर दिखेगा। तो प्रवर के अंदर क्या होगा, तो जनरली जो भी डिसीज होगा वो एग्जीक्यूट बाहर उतना ज्यादा नहीं करेगा। ओके, अगर क्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा होगी, सिंपल वॉकिंग के अंदर उसके गेट से हम देख सकते हैं कि इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू वॉक टू द पेशेंट, वो भी हमें दिख रहा है, मगर फिर भी वो क्या करेगा, यस सर इट्स ओके, थोड़ा सा पेन हो रहा है एंड वी कैन मैनेज। ओके, तो वो प्रवर सत्य जो है हमें वो भी उतना अच्छा नहीं है। अगर प्रवर सत्य बहुत ज्यादा होगा तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री हम नहीं ले पाएंगे, और सिंपल ट्रीटमेंट से हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली वी मे फेल। ओके, और सेकेंडली उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगी कि जो भी आप प्रिस्क्राइब करोगे टू द पॉइंट, पथ्य पथ्य मेडिसिन एंड ऑल, वो सब कुछ फॉलो करेगा। ओके, अवर सत्व वाला होगा वो आप चाहे कितना भी उससे समझा लो, चाहे कितना भी उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मगर फिर भी वो सर्टेन टाइम तक जो है वो अपने आप को समझाने की कोशिश करेगा, देन जल्दी से अपनी ट्रीटमेंट जो है वो छोड़ देगा। यानी कि 5 दिन सही तरह से इस्तेमाल करेगा, देन 6वें दिन से यानी 6 डे से वो कंप्लीटली सारी चीजें छोड़ने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त ये सत्व को लेकर रिपीटेटिव कंसल्टेशन करना वो हमें एक अगेन पता होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रवर सत्व है आपको पता चल गया, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई 1 महीने के बाद तुम आ सकते हो, आफ्टर 1 मंथ यू कैन कम। मगर अवर सत्व होगा तो यू हैव टू कॉल हिम और हर एवरी वीक, 7 दिन के अंदर आपको आके मिलना है, सिंपल। ओके, दे नीड टॉर्चरिंग इन एवरी वीक। ओके, certain sentences, certain positive sentences you have to give in a 7 days durations. Okay, then only they may stick to the your prescription, otherwise वो definitely वहां पे चले जाएंगे। तो पेशेंट्स को कितने दिन के बाद बुलाना, कितने दिन की दवाई देना, ये सारी चीजें भी सत्व के ऊपर से हमें प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। ओके, देन सात्म्य, सात्म्य यानी कि कौन सी चीजें उसे ऑलरेडी सही लग रही है। ओके, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ, तो तीनों रीजन के अंदर सात्म्यता जो है वो पेशेंट्स की या पर्सन की वो अलग अलग है। जैसे कि नॉर्थ में आप जाओ तो बहुत ही हैवी फूड होता है, गुरु पदार्थ जो होते हैं वो ज्यादातर लिए जाते हैं, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड चीज एंड पनीर एंड हैवी यूज ऑफ व्हीट प्रोडक्ट्स। ओके, मिडल के अंदर आओ तो वहां पे आपको थोड़ा सा लाइटर फूड आपको जो है दिखा जाएगा, एंड अगेन साउथ के बाजू में जाओ तो जनरली जो फूड होगा वो मोर ऑफ लाइट यानी कि लघु गुण युक्त आहार जो होता है वो मिलेगा आपको। ओके, तो ये रीजन वाइज भी सात्म्यता हमें पता होनी चाहिए कि पेशेंट कहाँ का है और कहाँ से। ओके, अगर पंजाबी पेशेंट आपके पास आता है तो यू अगर आप प्रिस्क्राइब करोगे कि भाई उसको पनीर नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो डेफिनेटली सेकेंड टाइम आपके पास नहीं आएगा। ओके, तो वो भी एक आर्ट होनी चाहिए कि पेशेंट्स को आप कैसे अपने पास रखें और उसको कैसे समझाएं कि दिस इज द पॉइंट जो आपको समझना है। ओके, मिश्र साथ में, एक के साथ में, ओ के साथ में, इट्स अ लॉन्ग थिंग जो हमें डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मिल सकते हैं और आप उसे आसानी समझ सकते हो। ओके, मगर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कौन सी रीजन से वो आ रहा है, देश, वो आपको जानना जरूरी है, और वो देश के अंदर उसका सात्म्यता कौन सी है वो आपको वहां पे डिफाइन करना है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज देश, यानी कि साधारण, जंगल एंड अनुप। ओके, साधारण देश के अंदर तो डेफिनेटली इन जनरल त्रिदोष जो होते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, जंगल के अंदर वात जो है वो ज्यादा रहता है, एंड अनुप के अंदर कफ पित्त जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसके आधार पर भी जैसे मैंने ऑलरेडी बोला नॉर्थ, मिड एंड साउथ के अंदर
तो उसके आधार पर भी आप जो है वो प्रिस्क्रिप्शन अपना चेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज आहार। आहार है यानी द फूड पॉइंट, द फूड, कौन कौन सी आहार विधान है, अष्टविधि आहार विशेषताएं है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बाहर होने चाहिए। और उसको समझाने के लिए यानी कि पेशेंट्स को समझाने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करना है। ओके, देन ओनली यू कैन प्रिस्क्राइब पथ्य प्रॉपरली। और हमेशा ध्यान में रखें, प्लस और माइनस वे पे, प्रैक्टिकल वे में मैं बात कर रहा हूँ, ये संहिता के अंदर नहीं है। प्रैक्टिकल वे में अगर देखने जाओ तो पथ्य शुड बी चेंज प्लस और माइनस वे पे जब भी पेशेंट आपके पास फिर से कंसल्टेशन के लिए आता है। ओके, यू हैव टू प्लस समथिंग और यू हैव टू माइनस समथिंग। ओके, देन ओनली पेशेंट्स फील यस ये कुछ अभी चेंज हुआ है, तो उसका माइंड सेट के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो फॉलो करने की कोशिश करेगा। और सिंपली अगर आप ऐसा करोगे, नहीं अभी जो पथ्य चल रहा है एज इट इज रखो, वी कैन सी आगे क्या होगा। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। आप जब भी संहिता पढ़ते हो एक अलग सिनेरियो होता है, मगर वही संहिता को प्रैक्टिकली इम्प्लांट करना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, टोटली डिफरेंट थिंग। सो प्लीज, डेफिनेटली हो सके तो बाहर आप कर सकते हो सारी चीजें, मगर सिर्फ बाहर करना, दिस इज नॉट अल्टीमेट और द एंड ऑफ द प्रैक्टिस। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि बीइंग एन आयुर्वेदिक, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स आर देयर जो हमें लिटरली चेंज होने के लिए मजबूर कर दे। यू हैव टू चेंज, दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, तो प्लीज माय सजेशन इज ये सारे पॉइंट्स को सिर्फ बाइट करना जरूरी नहीं है, बाइट करके कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सके वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच। यस डॉक्टर मंजुला मैम। Thank you, Abhishek. It was really a very good session. I think there are no questions even on Facebook and Google Meet because you had your interaction in between. Yes. Maybe because of that. Yeah. Yes. So, if you can wait for another 10-15 minutes, Abhishek. Yes. Yeah, we'll start with the next session. If there are any questions, I will ask you. Yes, definitely. Okay, thank you. Now we are at. There is one question, I think, how we can find whether patient is apne to this thing or this thing at OPD level. Okay. Yeah. So you have to ask certain questions. Okay. कि पर्टिकुलर फूड अगर आप ये ले रहे हो, जैसे कि आपको लंघन प्रिस्क्राइब करना है और मूंग साथ में है कि नहीं है, तो यू हैव टू गिव सर्टेन थिंग्स, जैसे कि मूंग आपको 1 वीक के लिए देना है, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग कि यस उसको कोई तकलीफ हो रही है नहीं हो रही। ओके, और यू सिंपली आस्क कि आपने पहले हिस्ट्री के अंदर आपने पहले कभी भी ऐसे फास्ट एटसेट्रा किए हुए या नहीं किए हुए। जो भी आप पर्टिकुलर साथ में यानी कि स्किन डिसीज है तो उसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स एंड जो रक्त विकार करने वाले औषध या आहार होते हैं, वो आपको देखना है कि सिंपल अगर मैं नींबू पानी पी रही हूँ या पी रहा हूँ तो मुझे इचिंग हो रही या नहीं हो रही। ओके, द रिवर्स सिम्टम्स ऑलवेज बीन देयर अगर वो असात में होगा। ओके, जैसे कि अगर कोई भी वीट, कई बार कई लोगों को असात में होता है, तो अगर वीट लेने से या गेहूं लेने से यू फील डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन और वायु की जैसे कि फीलिंग होना, तो ये सारी चीजें, ये सिंपल सिम्टम्स जो होते हैं थोड़े टाइम के लिए होंगे, डजंट मैटर इट्स अ लॉन्ग थिंग, आधे घंटे के लिए डिस्टेंशन होगा, देन इट विल बी ओके। तो ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेगी आप जो प्रिस्क्राइब करना चाहते हो उस पॉइंट पे। ओके, यस आई थिंक। Thank you. Yeah. Now I call upon Miss Veena, final year BMS. Madam, 1 second, ma'am. 1 second. Yes. I'll start one more Facebook live page. Yeah. Yes, sir. Yes, Akshay. This is second session, no, ma'am. I'll start one more live session in Facebook. So that, we'll first have vote of thanks. We'll have vote of thanks, no? Sorry. Yeah. Okay. Now I call upon Miss Veena, final year BMS student, Ayurveda Mahavidyalaya Hubli, to give vote of thanks to Dr. Abhishek Acharya. Veena?
You're there? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon, everyone. I'm here to spell out words of thanks to all beautiful souls who made today's meeting successful. Now, I would like to thank our chief guest, Dr. Abhishek sir, for sharing his knowledge with us and also for his valuable time. It means a lot, sir. Thank you so much. I would like to thank our principal, Dr. A.S. Prashant sir, and chairman, Dr. Naregal sir, and Dr. J.R. Joshi sir for their support in making this session. Thank you, sir. Thank you so I much. thank personally for organizing team and all the staff members of Department Kaya Chikitsa. Thanks a lot. Last but not least, I thank all the participants and students for patience and valuable time for us in making today's session so successful. Thank you, one and all. Thank you so much. Thank you so much, Thank you. Manjula. Yeah, thank you, Abhishek. Thank you. Thank you. Okay. May I leave? Yeah, you can. Sure. Okay. Now. Yeah. Now we have completed the first session. Akshay, you can stop recording and re-record for the second session. Akshay? Yes, Hello? ma'am. One second. Yes. ma'am. Okay.